Okay. Good morning, everyone. Good morning. Am I audible? Good morning, Krishna Gopal, Ajit, Bikesh. Nitin. So good morning, everyone. Jai Hind, Kunal. Jai Hind. Good morning, Vyas. Where is Himanshu Bhattacharya? Good morning, Saurabh. A very good morning to all of you. So yesterday we have gone through principles of Indian painting. गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग. जहां हमने देखा था फीचर ऑफ इंडियन पेंटिंग, स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पेंटिंग, all about those conceptual parts. Today we have to start types of Indian painting. Good morning Akash, good morning. तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडियन पेंटिंग. कल हमने देखा था क्या क्या फीचर्स हैं, तो वही सारे फीचर जो हैं वही रिपीट होंगे मोस्टली with some variations. Most of the features are common, but still some variation like size of figure, projection of various body parts like eyes, nose, chin, difference in color combination. So on these grounds, Indian painting has a very diverse heritage. Painting, which is an art. कल देखा था हमने, painting is best among art. According to Chitra Sutram, painting is best among art. And what is art? Art is the reshaping of reality by men in an understandable way. कुणाल एमसीक्यू आज लास्ट में करेंगे, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर कल करेंगे. बिकॉज वेरी लॉन्ग टॉपिक, हमें लगा घंटे भर में हो जाएगा, ठीक है, बट 1 आवर विल नॉट बी सफिशिएंट. और कुछ पोर्शन मैं आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए, ठीक है. लास्ट में हम करेंगे तभी एमसीक्यूज, बिकॉज नाउ ओनली वी हैव टू गो थ्रू फैक्चुअल पार्ट. कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ क्लियर हो चुका है. कल का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है. देन वी हैव कवर्ड एंटायर कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ इंडियन पेंटिंग.
और अब we have to initiate factual part of Indian painting. We have to go through all the kinds of Indian painting and their features, similarity and differences. हिमांशु और कुलदीप अभी दिखे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल सी अबाउट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और जितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की है, स्पेशली ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी हिस्टोरिक, अर्ली हिस्टोरिक एंड मिडिवल पेंटिंग की भी है, फोक पेंटिंग की भी है, रीजनल पेंटिंग की भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक पेंटिंग एंड अर्ली हिस्टोरिक पेंटिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, prehistoric painting could be further divided in 3 periods. Number 1, अपर पैलियोलिथिक, हमने देखा भी था कल। अपर पैलियोलिथिक कल हमने देखा था इसको। अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। Here one point is very important. Good morning Pranav, good morning. One part is very important कि no proper evidence of painting from lower or middle Paleolithic age. No proper evidence. Though the cave of Bhimbetka, many archaeological evidences indicate that the beginning of human settlement in Bhimbetka started before 2,60,000 years ago. As per modern research, proper human settlement from 1 lakh years ago. Years ago, and as per the recent research, और वो भी एक इत्तेफाक था, some foreign archaeologists had come to visit India and there were meeting regarding archaeology, very huge of archaeology. But what happened? Their program, their meeting, their conference was cancelled because of pandemic, because of this coronavirus. So before going back, before returning, they requested Indian government just to visit once Bhimbetka cave, and government permitted them. As many other discoveries happened in past वाया इत्तेफाक, यहां भी एक इत्तेफाक हुआ। Suddenly they were observing only walls of Bhimbetka, but suddenly one of them glared at the ceiling and he was having some imprints of any animal. After archaeological testing, that imprint was found to be of Dickinsonia.
मीन्स द ओल्डेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, oldest animal. And remember one thing, Dickinsonia is not a species, it is a genus. For example, it is a class, a cat class. Our domestic cats are also cat, leopard also cat, tiger, panther, all come under cat class or cat category. Similarly, Dickinsonia is also a category, not a particular species, and which kind of species was there, we still don't know. अभी तक नहीं पता हमको कि which type of species among Dickinsonia family was there in भीमबेटका, तो अभी तक हमें पता नहीं इनके बारे में. तो 550 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब सेटलमेंट ऑफ एनिमल आप कह सकते हैं. देन जो डेवलपमेंट होती गई धीरे धीरे, तो वी कैन एज्यूम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भीमबेटका वाज अ प्रॉपर सेटलमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, अ रेगुलर सेटलमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग. लेटर व्हाट हैपेंड, some imprints may be of middle Paleolithic age also, but that could not be termed as proper painting. But when we come to upper Paleolithic age, meaning 4000 BCE, nearly 40,000 BCE, so Bhimbetka, oldest painting of Bhimbetka is nearly about 30,000 BCE. 30,000 BCE, the oldest painting. And what are the features of the upper Paleolithic painting or Mesolithic painting or Chalcolithic painting? Number one, here, use of Geru color. Use of Geru, in English ochre. Use of Geru color. Perhaps a lyricist or a poet that fellow must have been a historian who composed Rang De Tu Mohe Gerua, very famous song, Rang De Tu Mohe Gerua. The Gerua is beginning color, the color used in the beginning of painting, Gerua. When in prehistoric age, especially in upper Paleolithic age, just before 30,000 BCE. Second, linear representation of animals. Linear representation or depiction of animals. For example, मतलब क्या है इसका? If in painting they have to make an elephant, in case they have to make an elephant, they have to draw an elephant. So they didn't use something like this. They didn't made this elephant something like this. No, not a proper elephant. What they did, they drew some lines like this. Suppose this is the upper part of the elephant,
here eyes, a circle. These are four legs of the elephant, and this is tail of elephant. That's the eye. That's the trunk. Meaning they have drawn an elephant in this way. All kinds of animals have been drawn or have been depicted linearly, not in a proper way by using curves. No. That's the figure of an elephant, picture of an elephant. तो ध्यान रखना है, that is a very important feature of upper Paleolithic age. One, use of geru or ochre color, ochre, and second, linear depiction of animals or linear representation of animals. I think depiction word is more comfortable, though in book I found representation, but this word is more suitable. And third one, different colors to depict different objects. Different colors to depict different object. इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थर्ड वन. Different colors to depict different object. For example, to draw a sketch of a hunter, they used what? Dark red color. Dark red color. Second, to draw the sketch of dancer, they used green color. They used green color. But the most prominent color is a geru, and especially what is the main characteristics? This geru color mixed with lime and water. Lime and water ही वजह है कि आज तक जो है वो रंग उतरा नहीं है अभी तक. You can imagine what the status of their mind. Whatever we want, whatever we think, the same thing we have to be. Or the nature makes us the same thing, whatever we think. Those people are very much interested in painting. मजा आ रहा था because they experimented many times. अब ऐसा तो है नहीं अचानक सपना उनको आ गया होगा, सो के उठे होंगे और लाइम और वाटर मिक्स करके गेरू में उन्होंने एक रेड कलर तैयार कर दिया, बढ़िया कलर. नो. Just imagine how many times they would have experimented to make a proper color, to draw sketches of their own culture. अगर ये पेंटिंग नहीं होती तो बहुत कुछ उनके बारे में पता ही नहीं होता आज. This painting helped us very much to understand the proper culture and society of prehistoric age. You can imagine. अचानक तो हुआ नहीं होगा. So
दिस कोज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, द इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डेवलप more and more, above and above. We always try to go in the sky, and that also an evidence. So just remember 3 points about upper Paleolithic age painting. Number 1, use of geru or ochre color and especially mixed with lime and water. चूना और पानी का उपयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है. You can see the beginning of chemistry also here. Linear depiction of animals, दिखा दिया मैंने आपको कि भीमबेटका जाओगे खोजोगे भाई हाथी कहाँ पे है, वेयर इज एलिफेंट. यस नितिन, लेकिन वो पहले के लोग तो ना उतने बड़े बेईमान नहीं थे जितने हम लोग हैं आज. तो उन लोगों ने जो है असली गेरू यूज किया हुआ है. असली गेरू आज भी इसका कलर बना दोगे अगर तो बहुत लंबे टाइम के लिए, और पेंट हो गया उसके घर तो चमक नहीं जाएगी और रौनक नहीं जाएगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द नेचुरल कलर, आज के जो केमिकल पेंट आ रहे हैं, नॉट वेरी गुड फॉर द हेल्थ. बहुत अच्छी चीज नहीं है यह. तो अगर आप जाते हैं खोजते हैं कि हाथी कहाँ है, तो ये वाली हाथी नहीं दिखाई देगी, ध्यान रहे. इस टाइप का कहीं दिखे, इस तरह के मतलब 4 पैर दिख गए आपको, एक ट्रंक दिख गई, आईज एंड टेल, तो समझ जाना कि क्या है, ये हाथी है, एलिफेंट है. ये वाली हाथी मत खोजना, ध्यान रहे. So that the feature of upper Paleolithic age. Now come to the Mesolithic age. Mesolithic period painting. Period painting. Number 1. Today we are moving towards nanotechnology. And one of my seniors got patent in IBM USA for vapor insulation. होता क्या है, जो नैनो वायर होते हैं, मीन्स हैविंग डायमीटर ऑफ समथिंग नैनोमीटर, उनको इन्सुलेट कर देते हैं. मेटल का वायर है, अगर मान लीजिए 2 वायर अगर मैच कर गए तो व्हाट विल हैपन, ब्लास्ट. बट दैट नैनो वायर इज आल्सो बीन इन्सुलेटेड. कबीर कभी एक काम करना ना, घर में बच्चे हों उनको कलर पकड़ा देना, वो जो कलर बच्चे यूज करते हैं बनाने के लिए, जो आपके जो मोम वाले जो कलर होते हैं अलग अलग कलर के, तो आप देखेंगे उनकी किताबों में पेंटिंग कब होगी, दीवारों पे ज़्यादा होगी. पूरी दीवार पेंट कर डालेंगे बच्चे, हाथी घोड़ा कमल का फूल, जो जो मन में आया. कई बार तो ट्राई करते हैं पापा मम्मी का ही स्केच बनाने के लिए, अलग अलग तरीकों से. इफ दे आर वेरी हैप्पी विद यू, दे विल ट्राई टू मेक योर ड्राइंग इन अ वेरी नाइस वे. इन केस दे आर एंग्री विद यू फॉर एनी रीजन, तो पक्का तुम्हारी शक्ल खराब करेंगे दीवार के ऊपर. But the painting drawn in such a way
that we can't say that the game of children. Yes, Nitin. We can't say that the game of children. Definitely that would have been an entertainment for elders, for adults, for mature people. Just imagine, in my childhood, केवल 2 घरों में टेलीविज़न था, एक मेरे यहाँ एक मेरे अंकल के यहाँ। बट वो टेलीविज़न होने का ही फायदा नहीं मिल पाता था, क्योंकि बिजली कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो उस टाइम आप देखेंगे व्हाट आर द मेजर सोर्सेज फॉर एंटरटेनमेंट, स्पेशली ऑफ रूरल पीपल, नॉट अबाउट अर्बन पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन पीपल। दंगल, रेस्टलिंग, द गेम ऑफ कबड्डी was organized in every village. For children, gilli danda, ice pice, and kanchaj were very prominent games in our childhood. And pittu also, gend pittu. But as we developed in this era of internet, mobile games, video games, क्या हुआ? वो सारे sources of entertainment have been forgotten. बेटर कहिए कि हम लोग लॉस करते जा रहे हैं। बेटा तुम अकेले मार नहीं खाए हो, ठीक है ना, हम सब भुक्त भोगी हैं। वो पूरी जनरेशन जो है, हर कोई भुक्त भोगी है वो, जो उस दौर में रहा है। गिल्ली डंडा के लिए मैं खूब कूटा गया हूँ कायदे से। यस, नाउ देयर आर पबजी, तो हु विल प्ले गिल्ली डंडा और कंचाज और कबड्डीज। अब तो गार्जियन जबरदस्ती बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्क में। हम लोग तो ड्रीम होता था कभी जब मौका मिले घर के भाग जाएं। घर में रोका जाता था हम लोगों को, और अब गार्जियन जबरदस्ती उनको लेके जाते हैं पार्क में बच्चों को। बच्चे निकलना नहीं चाहते अब घर के बाहर। हाँ तो मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे 8 to 10 ईयर, they are going to launch their YouTube channel, they are making YouTube videos. What's going on in our society? We are going to kill childhood right now. We have to be very careful, very careful. टेलीविजन की खाद पाकर फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। Up to 15-16 years of our age, we were totally innocent. और अब देखिए 8 to 10 ईयर के बच्चों को, they are much mature than their age, than they have to be. तो कहीं न कहीं हम मासूमियत को मारते जा रहे हैं। We have to be careful, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यह शब्बीर मन गया मूड, चलो देखेंगे तो लास्ट में सुनाएंगे आज आप लोगों को। एंड सेकंड थिंग, फॉर द मैच्योर पीपल, फॉर द मैच्योर पीपल दैट मे बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एक और चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी यूज टू राइट डायरीज। हम फोटो निकलवाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं, कोई फंक्शन हुआ, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, विवाह हुआ, एनीथिंग, फोटो निकलवाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं। किन के लिए? शादी की वीडियो मुझे नहीं लगता कोई देखता होगा अपनी शादी का वीडियो। अपनी कुर्बानी कौन देखना चाहेगा? बट वी प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स फॉर आवर कमिंग जनरेशन, कि कभी उनको हमारी याद आए अगर हमारे न रहने पे, तो एक बार वो देख लें कि हाँ ये हमारे पेरेंट की शादी का वीडियो है, इनकी फ़ोटो है। एक कब फ़ोटो है कि हमारे फादर या मेरे मदर, हम छोटे थे, हमको लेकर के ताजमहल गए थे,
मीनाक्षी टेम्पल गए थे, तीर्थराज प्रयाग गए थे, अमृतसर गए थे। तो यहां भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल द पीपल ऑफ दिस एज would have been thinking about their future generation or about introducing themselves to their future generations. Because we will just see in Mesolithic age depiction of society, women making food, children playing, community dancing, डिपिक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द मेजोलिथिक पीपल देखेंगे अभी हम। तो मैं बता रहा था कि वी आर मूविंग टुवर्ड नैनो। ये ह्यूमन बीइंग की जो है फितरत रही है, अ बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज टू मिनिमाइज ऑल दोज थिंग्स व्हाट एवर हैवी फॉर अस। आप याद कीजिए अपने पेरेंट्स के बारे में, काफी हैवी बूट पहनते थे वो लोग। इवन दैट टाइम पुलिस वालाज, आर्मी मैन, आर्मी पर्सनल यूज टू हैव वेरी हैवी बूट। बट आज देखेंगे कि क्या हुआ, क्वालिटी उनकी बढ़ गई है, बूट की स्ट्रेंथ उतनी ही है और लाइट हो गए हैं ताकि चलने में इजी रहे। अर्लियर वी यूज टू हैव फर्नीचर, चेयर ऑफ वुडन चेयर और मेटेलिक चेयर, बट राइट नाउ synthetic material, very light and very strong, very long lasting। जो प्लास्टिक की जो भी चेयर खा रही हैं आपकी, टूटने का डर, न दीमक का डर, न धूप का डर, न पानी का डर, केवल आपको बचाना है फ्रॉम फायर। ओनली वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम फायर। और ऑब्वियस की बात है, कुर्सी के नीचे कोई आग तो लगाता नहीं है, और कोई लगा दे तो भाई बात अलग है उनकी, उनका मेंटल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो व्हेन द पीपल एंटर टू मेसोलिथिक एज। तो व्हाट हैपेंड? जस्ट गो टू द हिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग मैपिंग क्लास ऑफ मेसोलिथिक एज। इन व्हाट ग्राउंड वी डिफरेंशिएट Paleolithic age and Mesolithic age and then Neolithic or Chalcolithic age? On the basis of size of weapons and instruments. When in Mesolithic age what happened? The size of instruments were decreased. छोटे हो गए, smaller and light as compared to earlier ones. Same thing happened in painting also. हमारा माइंड सेट जब बदलता है ना, तो इन एवरी डायरेक्शन, नॉट ओनली इन वन डायरेक्शन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स नैनो टेक्नोलॉजी, बट नॉट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन एवरीवेयर वी आर गोइंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट होम हैज बीन कम। अपने मोबाइल से, अपना मोबाइल लेकर के आप अपने पूरे घर को मैनेज कर लेंगे। आप देख लेंगे कौन सी लाइट ऑन रह गई है, आप मोबाइल से ऑफ कर लेंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई बाहर वाले गेट का लॉक खुला रह गया, तो आप लॉक कर देंगे यहाँ से। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय योर स्मार्टफोन जस्ट आफ्टर 5G। तो यहाँ भी एक चीज होती है। तो फर्स्ट फीचर, स्मॉलर पेंटिंग एज कंपेयर टू अर्लियर और अपर पैलोलिथिक एज, जो भी लिखना चाहें, जो छोटा थोड़ा पड़ता है। सेकेंड, now red color became primary color,
हियर वी सी द प्रोमिनेंस ऑफ रेड कलर। रेड कलर का यूज काफी ज्यादा हो गया यहाँ पे अब। अभी एक बात मैंने बोला आपको, डिपिक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और ह्यूमन सीन्स लाइक एनिमल ग्रेजिंग, कम्युनिटी डांसिंग, hunting, etc. Depiction of animal grazing, hunting scenes, community dancing, etc. Example: कुपगल्लू केव इन तेलंगाना। प्री हिस्टोरिक का अगर एग्जाम्पल आप पूछेंगे तो इंडिया में स्पेशली एक ही आपका हो, भीमबेटका एंड आदमगढ़। ठीक है, मेनली भीमबेटका के पेंटिंग। यहाँ पर कई सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेंगी। तो अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग मैपिंग लेक्चर व्हेन वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक एज, उस टाइम भी मैंने कहा था कि इन मेसोलिथिक पीरियड इंडिया वाज द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन एंटायर वर्ल्ड। तो वी कुड सी the impact of that development in civilization here in painting also. Not only in Bhimbetka, Telangana also, South India, Badami also, North East Meghalaya also, but that not in syllabus, neither in book our book. मेघालय के पेंटिंग भी हैं अवेलेबल, नॉर्थ ईस्ट में कुछ पेंटिंग है, अभी रिसेंटली खोजी गई हैं तो उनका डेट भी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, बट माना जा रहा है कि मतलब that may be from Mesolithic age. Everywhere you will see it. Number 1, Kupagallu, Telangana. 2, Pikli Hall and Tekkalkota in Karnataka. And third one, and very important, Bhimbetka painting. भीमबेटका। अब यहाँ थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे अबाउट भीमबेटका। यहाँ के कुछ फीचर्स देखेंगे बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन Bhimbetka is again in limelight, so it must be possible UPSC could ask some questions from any perspective. जरूरी नहीं कि वो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछे अबाउट डिकनिकोनिया, मैपिंग में भी पूछ सकती है और यहाँ पेंटिंग या कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा सकता है। मतलब भीमबेटका है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस डायमेंशन में अब हम नहीं जानते हैं, बिकॉज इट इज इन लाइमलाइट एंड इन यूपीएससी जया बच्चन इज नॉट देयर टू डिफेम भीमबेटका। मेसोलिथिक पेंटिंग स्मॉलर पेंटिंग एज कंपेयर टू अर्लियर, साइज छोटे हो गए।
सेकंड एग्जाम्पल, दो केव है यहाँ पे, पिकली हाल, PIKLIHAL, पिकली हाल, PIKLIHAL, पिकली हाल, एंड टेक्कल कोटा, TEKKALKOTA, पिकली हाल एंड टेक्कल कोटा। तो आइए, नंबर 1, लोकेशन बताना पड़ेगा आपको इन MP, 60 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। And any of you could tell me the name of the district where this place Bhimpetka is located? Welcome Nitin, Krishna Gopal. तो where is Bhimpetka? In Madhya Pradesh, 60 kilometer from Bhopal, from the capital of MP. डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा पोस्ट कीजिए। नंबर 2, 7 स्टेजेज ऑफ पेंटिंग डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया ना कि द पेंटिंग वर नॉट ऑफ अ सिंगल टाइम पीरियड, ऑफ अ सिंगल एरा, ऑफ अ सिंगल ड्यूरेशन। 7 स्टेजेज मीन्स all the paintings were drawn during 7 different time periods, like upper Paleolithic age, then Mesolithic, Chalcolithic में भी। even in early historic period में भी आप देखेंगे some paintings are very new of early historic period। वेरी गुड कुणाल, ऋषभ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राशन, तो 7 स्टेज ऑफ पेंटिंग डेवलपमेंट। आप जो पुरानी पेंटिंग देखेंगे उनकी कुछ और कंडीशन है, बाद में डेवलपमेंट होता जाएगा उनका धीरे धीरे। टोटल 7 काइंड ऑफ पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स। कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी टाइमिंग भी डिफरेंट मिली हमें, बट मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स, मतलब 70 to 80% फ्रॉम मेजोलिथिक एज। ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम मेजोलिथिक। दैट्स व्हाई वी स्टडी अबाउट भीमबेटका जनरली ड्यूरिंग मेजोलिथिक पेंटिंग। आगे बढ़िए, थर्ड वन, डिपिक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ सीन। वह जो पीछे मैंने बताया, डिपिक्शन ऑफ सोशल लाइफ और एवरीडे लाइफ, everyday life scene। for example, hunting, grazing, animal grazing, children playing, वही पीछे जो हमने डिस्कस किया अभी, and community dancing or group dancing। or group dancing। मोस्ट ऑफ द कलर ह्यूज रेड। अभी हमने देखा मेजोलिथिक पेंटिंग आर मेनली ड्रॉन बाय रेड एंड वाइट पेंट हैव आल्सो बीन यूज्ड हियर। वन मोर थिंग, टोटल नेचुरल कलर मीन फॉर रेड कलर दे यूज्ड हेमेटाइट, that is iron ore and iron ore,
दे एक्सट्रैक्टेड रेड कलर बाय यूजिंग हेमेटाइट। तो दो तरह के कलर बनाते थे लोग, वन फ्रॉम हर्ब और वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फ्रॉम लीव एंड सेकेंड फ्रॉम मिनरल्स। तो दो तरह के जो है कलर बनाए जाते थे उस टाइम। कुछ पेंटिंग में देयर इज एविडेंस ऑफ यूजिंग एनिमल ब्लड आल्सो, लाइम और वाटर कॉम्बिनेशन में देख ही लिया। तो उस टाइम इनकी थॉट प्रोसेस और टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए। नाउ कम टू द चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक पेंटिंग। चैल्कोलिथिक पेंटिंग पहला चेंज क्या आता है? अगेन वेरिएशन इन कलर। तो यहां मेन कलर हुए ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड येलो, दैट द फर्स्ट पॉइंट। मेनली डिपिक्शन ऑफ बैटलफील्ड, डिपिक्शन ऑफ बैटलफील्ड। डिपिक्शन ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑन हॉर्स और एलिफेंट। डिपिक्शन ऑफ हॉर्स राइडर or a person sitting on elephant. Sitting on elephant. एक और, a horse rider having bow and arrow in his hand. A horse rider having bow and arrow in his hand has been depicted in Chalcolithic painting. तो ये तो हो गई आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग। तो दो तरह की पेंटिंग है इंडिया में। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग। नंबर 1 म्यूरल पेंटिंग एंड सेकेंड वन मिनिएचर पेंटिंग। भित्ति चित्र, लघु चित्र। लघु चित्र तो पहले देखते हैं म्यूरल पेंटिंग। डे बिफोर यस्टरडे we had a question here in discussion about various MCQs. अजंता केव एंड लेपाक्षी टेम्पल, म्यूरल पेंटिंग वहां पे आई हुई थी। तो है क्या? यस नितिन, हॉर्स थे उस टाइम। तो देयर आर मेनी interpolations and many things still
वी हैव टू नो। कुछ पेंटिंग उनकी भी मिली हुई हैं जो आपके यहाँ नहीं होती, जो एनिमल जो इंडिया में नहीं पाए जाते। तो पता चला कि दे आर वेरी ओल्ड, और वो तब के हैं जब आपका वो नॉर्दर्न अमेरिका वाला जो पोर्शन था वो अलग नहीं हुआ था, वो ज्वाइंट था। तो माइग्रेशन लोगों का होता था, जो भी लोग रहे थे उस टाइम, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, या जो भी लोग थे, या होमो फ्यूचरियस, होमो इरेक्टस, जो भी लोग रहे होंगे उस टाइम। होमो फ्यूचरिस्ट तो भाई फ्यूचर ह्यूमन है हम लोग की बात का, वो गलत ना ले लिया मैंने। बट होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नॉन, निएंडरथलेंसिस तो उस टाइम माइग्रेशन होते थे। अफ्रीकन ओरिजिन के लोग क्यों हैं? बिकॉज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जब अलग हुआ, पहले एक में था तो लोग माइग्रेट होते रहते थे, जब अलग हुआ तो वो लोग इधर आ गए, कुछ लोग वहां पे। तो उन एनिमल की भी पेंटिंग है जो कि इस टाइम नॉर्दर्न अमेरिका में मिलेंगे आपको। तो इस तरह से इंटरपोलेट किया था उसको, बहुत सारी चीजें भी स्टिल अननोन। बट यू नो वेल, यूपीएससी डिडंट आस्क एनी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, एनी डिस्प्यूटेड इशू। wherever our government, our archaeological survey of India, our HRD, not HRD, now education ministry, our government books like NCERT and IGNOU are agree with any point, the same thing will be asked by UPSC. ओके नितिन, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट की म्यूरल पेंटिंग। जनरली with the help of various colors, drawing or sketching on wall or any solid structure is known as mural painting. Illustration of various drawings or pictures on walls or any solid structure is known as mural painting. अभी आपने जो भीमबेटका देखा, दैट इज व्हाट? म्यूरल पेंटिंग। अजंता, एलोरा, बादामी, ऑल आर म्यूरल पेंटिंग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी विल सी इट लेटर, बट 2 पॉइंट जान लीजिए। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, बट हियर द मिनिएचर टर्म comes from a Latin word minium, which means red vermilion. And again, small paintings. Not more than 24 square